everyone. Myself Yash Srivastava. I am the first year student of MNIT Allahabad. Here I am going to discuss work energy theorem and its some applications. First we have to prove work energy theorem. Then we move on for the good questions. Let's prove work energy theorem. Let a particle of mass m subjected to a force F whose acceleration is a. We have to write the force equation. F is equal to m into a. F is equal to m is dv by dt, और हम dv by dt और उसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं ds by dt एंड dv by ds. ds by dt is v by ds. ds इधर चला जाएगा, mv dv. Now we integrate both the sides. Work done is f dot ds. लिमिट लगाएंगे v से u तक, mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2, and this is change in kinetic energy. Let a particle of mass m subjected to a force F and get an acceleration of a. F is equal to m vector a. F is equal to a को हम लिख सकते हैं dv by dt, m dot dv by dt. F is equal to m, इसको एक अनदर फॉर्म इसका लिख सकते हैं ds by dt and dv by ds. F is equal to m ds by dt is v, so F is equal to mv dv by ds. अब ds इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, F dot ds is equal to mv dv. अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ द साइड्स. एंड लिमिट लगा देंगे v से u तक, और f डॉट ds इज द फोर्स, dw from w to 0, and this work done is equal to change in kinetic energy. This is the work kinetic energy theorem for the single particle. Let's move on the question part. मैंने क्वेश्चन लिया है iRudo से, पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 121. A body of mass m was slowly hauled up the hill by a force F, which at each point was directed along a tangent to the trajectory. Find work performed by this force if the height of the hill is h and the length of its base is L and the coefficient of friction is mu. ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है मास m की, इससे फोर्स से एक हिल पे ले जाया जा रहा है, तो हमें वहाँ उसका फोर्स निकालना है जिसपे हाइट दी है जिस हिल की h और लेंथ दी है L. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. वर्क डन, फोर्स F प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन is equal to change in kinetic energy. Here it is clearly mentioned that the body is slowly hauled up. So what the speed is initial point is same as the what is the speed at the final point. So the final kinetic energy and initial kinetic energy is same. So the change in kinetic energy is 0. तो अब हमारे पास दो तरीके निकालने के फोर्स के, एक वर्क डन बाय फोर्स के, एक हम डायरेक्टली निकाल लें और दूसरा तरीका ये है कि हम इनडायरेक्टली सारे वर्क डन को निकाल कर एफ का वर्क डन निकालें. तो हम दूसरे तरीके से करेंगे. हमारी इक्वेशन बनेगी. अब हम चलते हैं वर्क डन निकालने बाय नॉर्मल.
वर्क डन बाय नॉर्मल, it is very easy, it is equals to 0 because at every point on this path normal vector is perpendicular to the displacement vector, so the work done is 0. Now we move on to the work done by mg. Work done by mg is equals to, हम देख सकते हैं this is the displacement vector and this is mg, force mg. So mg force is acting in opposite direction to the displacement, so the work done by the mg is equal to minus mgh equals to the potential energy stored in the body. After that we move on to the, here it is minus because of work done is in opposite direction to the displacement of the particle, so here minus mgh. Then we by frictional force, work done by frictional force, वर्क डन बाय mg. तो वर्क डन बाय mg हम जानते हैं जैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका वर्क डन हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं f डॉट एस करके. f डॉट एस करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, mg जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, सो वर्क डन क्या होगा माइनस mgh. माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम माइनस यूज करते हैं. तो वर्क डन, अब हम वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स के लिए चलते हैं. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए यहाँ पे हमें एफ डॉट डी एस करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डी एस वेक्टर. डी एस की वैल्यू वेरिएबल, डी एस वेरिएबल वेक्टर है, हर जगह थीटा चेंज हो रहा है इसलिए डी एस की वैल्यू वेरी करती है. आइए डायग्राम से समझते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स है डी एस की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है, और फ्रिक्शनल फोर्स हम फोर्स बैलेंस निकालते हैं. इसमें पहले फोर्स बैलेंस करते हैं. नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर लगेगा इसके, और एम जी परपेंडिकुलर टू द अर्थ. हम एम जी का कंपोनेंट लेंगे, ये थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, और एम जी के फोर्स का कंपोनेंट करने के बाद हम चलते हैं फोर्स बैलेंस की इक्वेशन पे. एम पे हम फोर्स बैलेंस कराएंगे, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इजकल टू 0, एन इजकल टू एम जी कॉस थीटा. फ्रिक्शनल फोर्स इजकल टू म्यू एन. एन की वैल्यू हम रखेंगे म्यू एम जी कॉस थीटा. अब हम यहाँ से वर्क डन निकालेंगे. वर्क डन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये कितना होगा, ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डी एस. अब डी एस की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे म्यू एम जी कॉस थीटा डी एस. लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, डी एस इज वेरिएबल, लेकिन डी एस कॉस थीटा जो इसका कंपोनेंट है वो वेरिएबल नहीं होगा. वो किसके बराबर होगा, वो होगा dl के बराबर. तो ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम उठा के पुट कर देंगे यहाँ पे. उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे dl
इंटीग्रेट कर देंगे फोर्स को फ्रॉम 0 to L या 0 to W, देन वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एम जी एल। ये फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव लेते हैं इसलिए माइनस एम जी एल, माइनस म्यू एम जी एल। अब ये वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स आ गया है, इसको हम चलते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, इसमें हम पुट करेंगे जितनी भी वैल्यू आई है वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, सबको हम ऐड कर दें, लिखते हैं डब्ल्यू एफ इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय एम जी क्या है माइनस एम जी एच, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या है माइनस म्यू एम जी एल, माइनस अंदर जाएगा ये प्लस ये हमारा एल। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्योंकि वर्क डन हमें दिख रहा है कि वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर हाइट जो है इसकी h है और लेंथ l है, वर्क डन h और l पे ही डिपेंड करता है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर हम चाहें तो इसका पाथ चेंज कर दें तब भी वर्क डन हमारे यही आएगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पाथ इंडिपेंडेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए यही बेस्ट अप्रोच है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरीके का सवाल कर सकते हैं। चलिए इसके रिव्यू कर लेते हैं दोबारा। हमने क्या किया, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ किया। वर्क डन इक्वल टू नेट वर्क डन इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एफ जो हम लगा रहे थे अप्लाइड फोर्स, एम जी वेट ऑफ द बॉडी, एन नॉर्मल टू द सरफेस नॉर्मल फोर्स, एंड एफ फ्रिक्शनल फोर्स, उसके इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो हमने यहाँ इस इक्वेशन से वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड फोर्स ये निकाला। उसके बाद हमने वर्क डन बाय नॉर्मल 0 इसलिए लिखा क्योंकि नॉर्मल वेक्टर हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए वो 0 होगा। वर्क डन बाय एम जी माइनस एम जी एस होगा क्योंकि एम जी जो है वो अपोजिट लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, सो माइनस एम जी एच, माइनस नेगेटिव साइन इसलिए आया है यहाँ पे। और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, हम पहले फोर्स बैलेंस कराएंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, एन माइनस एम जी कॉस थीटा, और इस पर कोई मूवमेंट नहीं थी वर्टिकल डायरेक्शन में, इक्वल टू 0 इन, यहाँ ये भी लिख सकते हैं इन वर्टिकल डायरेक्शन। देन एन की वैल्यू क्या आएगी, एन एम जी कॉस थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू एम जी कॉस थीटा ये वैल्यू आएगी। वर्क डन क्या होता है एफ डॉट फ्रिक्शनल फोर्स डॉट डी एस, डी एस इज वेरिएबल फॉर डी एस की हर वैल्यू अलग अलग होगी हर जगह पे हर पॉइंट पे, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है तो इसलिए डी एस वेरिएबल है। हम लेकिन एफ की वैल्यू रखेंगे, और डी एस कॉस थीटा में यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डी एस कॉस थीटा जो है वो कांस्टेंट है, वो डी एल, ये ट्रिक यहाँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे यही एक की पॉइंट है इस सवाल का, डी एस कॉस थीटा इज डी एल, तो उसको डी एल लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एल लिमिट लगा के, तो माइनस म्यू एम जी एल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। उसके बाद हम सारी वैल्यू लाके अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एम जी एस प्लस म्यू एम जी एल मिल जाएगा। साफ साफ देख सकते हैं कि जो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स आया है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो पाथ कैसी भी हो हम ऊपर को भी कर सकते हैं और दूसरा भी दे सकते हैं। ये सब घुमाने के सवाल के तरीके हैं और उनका आंसर यही आएगा। तो मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। यस।